Good morning, class. Now we'll proceed to next topic, fishing in troubled waters. मछलीपट्टनम. तो मछलीपट्टनम जैसे कि नाम से ही हमें पता है, मछलीपट्टनम का मतलब हुआ जहाँ पर फ़िश कैचिंग का बिजनेस अच्छा था. तो फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, यहाँ पर हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ये भी एक पोर्ट था विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिशर्स. The town Machilipatnam or Machilipatnam, literally fish port town, lay on the delta of Krishna river, and in the 17th century it was the center of intense activity. मतलब like Surat, here also some business activity take place. Both Dutch and English East India companies attempted to control Machilipatnam as it became most important port in Andhra coast. द पोर्ट एट मछलीपट्टनम बिल्ड बाय द डच. तो यहाँ पर डच का जो था वो कंट्रोल था. सो कुतुब शाही रूलर गोलकोंडा इम्पोज द रॉयल monopolies on the sale of textile and spices and other items, prevent the trade passing completely into the hands of the various East India Company. Fierce competitions among the various trading groups, the Golconda nobles, Persians, merchants, Telugu, Komati, Chetis, European traders made the city populous and prosperous. मतलब किसी एक का हाथ नहीं था, नेटिव्स भी थे और फॉरेनर्स भी थे who made this city, this area, this port popular. As the Mughal began to extend their power in Golconda, their representatives and Governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर. मतलब उन्होंने एक तरीके से ऐसा गेम खेलना शुरू करा कि डच और इंग्लिश को आपस में ही लड़वाया. एंड इन 1686 और 7 मुगल एम्पर औरंगजेब एनेक्स गोलकोंडा. तो यहाँ पर फिर उसके किसके हाथ में आ गया? मुगल एम्पर. उस टाइम पर औरंगजेब था तो उसके हाथ में ये आ गया रीजन. तो दिस कोज द एम्पर यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर द alternative. It was the part of new policy of English East India Company that it was not enough for the port of connection with production centers of the hinterland and new company trade center. It was felt should combine political, administrative and commercial roles. So the company traders moved to Bombay, Calcutta, present time Kolkata, and Madras, present Chennai. Machilipatnam lost both its merchant and prosperity and declined in the course of 18th century, being today nothing more than dilapidated little town. तो कहते हैं आज इसका मतलब ये टाउन सिर्फ इसके नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स हुई थी. और इसका क्योंकि ब्रिटिश ने अपने तीनों जगह अपनी प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश करी, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. ठीक है, वहाँ से इसका नाम फिर पीछे ही रह गया. Now new towns and traders. So in the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile, which had come popular both in Europe and West Asia. So English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities. Commercial activities आप समझते हैं, अपने business purpose से लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए एक्टिविटीज़ in East India. Initially great Indian traders like Mullah Abul Ghaffar and Virji Vora, who owned the large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain the control over sea trade and forced Indian traders to work as their agent. तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी और इंडियन को जो था वो उन्होंने अपने एजेंट्स बनाए, मतलब उनके अंदर काम करते थे. एंड अल्टीमेटली इंग्लिश emerged as the most successful commercial and political power in this subcontinent region. So the spurt in demand for the goods like textile led to a great expansion and the craft, spinning, weaving, bleaching, dyeing etc. स्पर्ट का मतलब यहाँ पर है एक अच्छा खासा जंप मिला. ठीक है, इससे मतलब एक अच्छा खासा जंप मिला. कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी हद तक बढ़ा. मोर एंड मोर पीपल
taking them up, and Indian textile design became increasingly refined. However, the period also saw the decline of independence of crafts. इसी टाइम पर इन्होंने यहाँ पर मतलब काफ़ी डिक्लाइन भी देखने को मिला, मतलब बिजनेस जो था, क्राफ्ट पर्सन जो थे, उनका काम ख़त्म होने लगा. दे नाउ बिगिन टू वर्क सिस्टम ऑफ एडवांस विच मीन्स दे हैड टू वीव क्लोथ विच हैड ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन एजेंट. इसका थोड़ा सा स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, इसके पीछे की कहानी क्या है. जब ब्रिटिश ने सारा मार्केट ऑक्यूपाई करने लगे धीरे धीरे, तो अब उनको उनके लोकल एजेंट्स उनके लिए कुछ नहीं थे, क्योंकि उनको सीधा ब्रिटिश से कांटेक्ट करना पड़ता था, और जिसकी वजह से बहुत सारे कंडीशंस लागू हो गए थे और वो उन कंडीशंस को पूरा करने में इनकैपेबल थे. तो सिंपल स्टोरी है ये. सो वीवर्स नो लॉन्गर लिबर्टी of selling in their clothes, weaving their own patterns, and they had to produce the design supply them by the company agent. मतलब उनको कंपनी के हिसाब से ही सब करना पड़ता था, पहले वाला सिस्टम ख़त्म हो गया था. सो 18th century saw the rise in Bombay and Calcutta and Madras. तो इस टाइम पर हमारे 3 पोर्ट अगर हम कहें इंडिया के साइड, ये आपका बॉम्बे हो गया, ये आपका मद्रास हो गया, और यहाँ आपका कोलकाता हो गया. ये तीनों ही इन पोर्ट का ही बोलबाला था, इसके अलावा कहीं से ट्रेड नहीं होता था. ठीक है. क्राफ्ट कॉमर्स एंड अंडरवेंट मेजर चेंजेस, एंड मर्चेंट्स एंड आर्टिजियंस such as weavers were moved to the black towns established by European companies, and which these cities and black or native traders and craft persons were confined here, while white rulers occupied superior residence in the Fort St. George in Madras and St. William, Kolkata. The story of craft commerce in 18th century will be taking up next year. तो सारा डिटेल आपका नेक्स्ट ईयर में है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी एस्टेब्लिश हो गई. एक तो आपके बन गए ब्लैक टाउन, और दूसरे आपके बन गए वाइट टाउन. तो वाइट का मतलब है जहाँ ब्रिटिशर्स थे, ब्लैक का मतलब है जहाँ इंडियंस थे. ठीक है. यहाँ आपका थोड़ा सा स्टोरी जो है आपकी वास्को डिगामा की है. वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर वास्को डिगामा जो था वो 15th सेंचुरी में इंडिया आया, और उसने जो था एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट्स के लिए फेमस था. मतलब उसने ये रास्ता ढूंढ निकाला, बिकॉज काफ़ी जो चीज़ें थी इंडिया की बाहर भी जाती थी, तो उसको खोजते हुए लोग इधर भी आए. सो दे वुड ट्राई द डिज़ायर टू फाइंड द वे रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑप्टिंग द स्पाइसेस. ठीक है. मेन मकसद स्पाइसेस के लिए आना था. तो ही वॉज अ पोर्तुगीज सेलर, सेल डाउन इन अफ्रीका कोस्ट. कैसे ये आया होगा, इसका थोड़ा सा पिक्चर अगर मैं आपको बना दूं. सपोज़ ये आपका यूरोपियन कंट्री है, ये मेडिटेरियन सी है, ये अफ्रीका है. ठीक है. तो यहाँ से वो निकला होगा, यहाँ तक आया, फिर इसको ऐसे से इसने रूट किया, फिर यहाँ से ये आपके अरेबियन कंट्रीज़ हैं. ठीक है. ये हुआ, फिर यहाँ आपका इंडिया है, तो इस तरीके से इसने इंडिया का, ये आपका बॉम्बे, फिर यहाँ पे कोची, इस तरीके से साउथ, मतलब साउथ की तरफ वो इंडिया की तरफ आया. ठीक है. हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन ईयर. 1 साल में ये पहुँचा. रीच्ड कैलकाटा 1498 एंड रिटर्न द लिस्बन कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, एंड फॉलोइंग ईयर ही लॉस्ट 2 फॉर द शिप, 2 हिज फॉर शिप. 4 शिप में से आए थे इसके पास, जबकि 2 इसके ख़त्म हो गए. 170 पीपल इसके साथ थे, जिसमें कि 54 ही बचे, बाकी सब मर गए 1 साल के अंदर. स्ट्रॉम भी आए होंगे, प्रॉब्लम्स आई होंगी, obviously we can understand this. And in spite of obvious hazards and route and opened up the proved to extremely profitable. Then he was followed English, Dutch and French sailors. तो जिनको फॉलो करते करते वो इधर तक पहुंचा. तो सी रूट्स और इंडियन हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट एंड अजम्पशन दैट द अर्थ वॉज राउंड. और ये भी मान लिया गया, मतलब इसने काफ़ी इन चीज़ों में खोजबीन भी करी, चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करी कि अर्थ जो है वो राउंड है. फिर क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटालियन था, उसने भी इसको फॉलो करा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आया. अटलांटिक ओशन में फाइंड आउट रूट्स टू इन इंडिया, वहाँ कोशिश करी, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया, अमेरिका की साइड पहुँच गया. तो वहाँ इसने क्या किया, जब ये वहाँ उतरा, लैंडेड इन वेस्ट इंडीज़ विच गॉट देयर नेम बिकॉज हिज कन्फ्यूज़न. क्योंकि उसने इसको इंडिया, उसने कहा ये तो वेस्ट की साइड ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सी रूट इन्वेंट हो चुके थे थोड़े बहुत, तो उसने वेस्ट की साइड डायरेक्शन लगाया. तो वहाँ उसने कहा कि इंडिया जो है वेस्ट में है, तो
तो ये वेस्ट इंडीज़ इसका नाम हुआ। सो इन 1492 ही वॉज फॉलोड बाय द सेलर्स एंड कॉन्कर्स ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल हु ऑक्यूपाइड द लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल साउथ अमेरिका ऑफन डिस्ट्रॉइंग द अर्लियर सेटलमेंट इन एरिया। ठीक है, तो इसने वहाँ पर अपना इस तरीके से दोनों चीज़ें एक साथ शुरू हुई। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।